Hello everyone, welcome to Jigyasa. I'm your educator Devasmita. So, in this particular session or in this particular class, we are going to learn about the transgenic varieties or the transgenic organism, or what are the transgenic organism, like why is it's under transgenic animals and transgenic plants or some transgenic microorganisms. So how it can be transformed from one to another, and how we can form a transgenic varieties from a single genome, okay, by using a single genome. Or this is mainly for or plus 2 or plus 3 and MSc students, and it's going to be helpful for other competitive exam also. So let's proceed about the what are the transgenic organism, and the what is the transgenic animals, transgenic plants, and the transgenic microorganisms. Okay, so here you can see that this is the transgenic variety of the mice, and this is the genome or the DNA consisting of. So let's start about the what is a transgenic organism. So before we going to start about the transgenic varieties or different types of the transgenic organism, uh, first you have to know about the what is a transgenic or what is a transgenes, how it could be formed. Okay, so first things, that is whenever we see here, you can see that one genome present here. That is one thing, that is first things, suppose any one of or suppose any of the DNA segments or the genome segments will be extracted from any of the organism. Suppose this is the X is the organism. Okay, so it consists of some genome or some chromosomes also. Okay, so whenever we desired genome, we first things, that is the desired genome. Okay, selected the desired genome. How could we collected, or how can we collected that the desired genome? By the using of the some restriction enzymes. Okay, by the using of some restriction enzyme, it can cut the specific sites. That's we then after the cutting of that particular segment, then we can extract from that particular genome from that particular organism. Okay, so suppose here is the specific points. So this is the specific or recognition site of that particular genome or particular organisms. So suppose this is the our target gene. Okay, so then whenever we extract from this genome or this chromosome segments from the particular organism X, and introduced into another organism, that is the Y. Okay, सपोज कि हमको मुझे क्या करना है ना, एक्स ऑर्गेनिज्म से कुछ सेक्शन लेकर के हमको वाई से इंट्रोड्यूस करना है, और उसमें से क्या करना है, उसमें रिकम्बिनेंट वैरायटी हमको बनाना है. ठीक है, सो ये हो गया क्या ना, तुम्हारा ये सारा प्रोसेस हुआ ट्रांसजेनिक की प्रोसेस. और जो जीन को हम लोग ट्रांसफ़र करके लाते हैं कहाँ पे ना, अदर ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रांसजीन. हियर यू कैन सी दैट दिस इज ए प्लाज्मिड, दिस इज ए प्लाज्मिड, एंड दिस रेड पर्सन इज द ट्रांसजीन. और जिसको हम लोग कहाँ पे ये करेंगे, इंसर्ट करेंगे, दिस इज द टारगेट जीनम. ठीक है, अनदर. तो जब टारगेट जीनम में यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो हो गया डीएनए का सीक्वेंसेस, यहाँ पे ये जो हो गया क्या ना, ट्रांसजीन. जब इसमें टारगेट जीन में इंसर्ट करते हैं तो कैसा होता है ना, लुक लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द टारगेट जीनम, एंड यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं किसको ना, जो ट्रांसजीन हो गया. ठीक है, तो जब ये इंटरकोर्स करेगा, या फिर जब इस जीनम के साथ वो क्या कर सकता है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा ना, कुछ जो टारगेट जीनम का जो कुछ जीन था. ठीक है, अब उसके बाद क्या है ना, जो ट्रांसजीन आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसका क्या है ना, फिर से टारगेट जीन आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. सो ये था तुम्हारा क्या ना, होल प्रोसेस, कैसे ट्रांसजीन, कैसे जिसको हम लोग जो भी जीन है वो कैसा ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम वन जीनोम सीक्वेंस टू अनदर जीनोम सीक्वेंस. समझ में आया. सो
तो ये था तुम्हारा क्या ना ट्रांसजीन प्रोसेस और द ट्रांसजेनिक प्रोसेस. So in case of also some plants also, whenever we see about in a lab technique also, we just extract from some bacterial genome or bacterial sequences, DNA sequences. You can see that here that how it can be transferred from one to another. ठीक है, तो बैक्टीरियल जीनोम को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पे ना प्लांट के केस में. सो फर्स्ट थिंग्स द बैक्टीरियल जीनोम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स दैट देन डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है एंड आइसोलेशन होता है. देन उसका क्या होता है ना क्लोनिंग. क्लोनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग. सो क्लोनिंग एंड द डिजाइनिंग द जीन का हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ये सारा चीज़ आ जाएगा. उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया जो कुछ पेटी डिशेस पे बैक्टीरियल पे हम लोग सेल का टिश्यू का कल्चर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वो कैसा ना प्लांट ब्रीडिंग जो टेक्निक है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सेगमेंट लेकर के उसमें हम लोग डेवलप कर सकते हैं. अगर जो जेल दे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना उसको रन करा सकते हैं. ठीक है, और उसको न्यू वेरिएंट और न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ जो भी प्लांट स्पीसीज हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं. समझ में है. ये था क्या ना तुम्हारा होल प्रोसेस, किसका नाम, ट्रांसजेनिक प्रोसेस. सो एक्चुअल में ट्रांसजेनिक क्या होता है और ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग्स व्हेनेवर वी सी टॉक अबाउट दिस इज द ट्रांसजेनिक वेराइटी. सो व्हाट इज मीन कि व्हाट इज द ट्रांसजेनिक वेराइटीज और द transgenic organism, how could you how can we identify this is the only transgenic variety. So let's talk about what is transgenic organism. So whenever we see about the transgenic organism, क्या कहता है, the organism which contain the functional foreign genes experimentally introduced into their genome by genetic engineering from another species are called as the transgenic organism, also called as the transgenics. सो इसमें क्या बोल रहा है ना, अगर हम लोग क्या कहते हैं ना, कोई भी फंक्शनल ओरिजिन हो रहा है और फॉरेन जीन को ला करके, सपोज एक्सिस in the previous slide also we have already seen about how the transgene transfer from the one genome to or one organism to the another organism. so कोई भी फॉरेन जीन आकर के कोई एक्सपेरिमेंटली हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें ना अदर अनदर स्पीसीज में, बाय कौन से प्रोसेस में ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में. ये जो भी सारा चीज़ हो रहा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में ही हो रहा है. ठीक है, तो अनदर स्पीसीज तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक. ठीक है, so the foreign gene alters the host cell genetically and is termed as the transgene. जिसको हम लोग जो भी जीन को हम लोग जो भी फॉरेन जीन को हम लोग क्या कहते हैं ना ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रांसजीन. then the production of transgenic organism is known as the transgenesis. so जो न्यूली डेवलप्ड वेराइटी फॉर्मेशन होगा आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन और द जीनम, देन जो न्यूली वेराइटी जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, ट्रांसजेनेसिस. और द प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनेसिस. सो द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसको हम लोग अदरवाइज क्या बोल सकते हैं ना, जीएमओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. समझ में आया. So the latter may be also be formed by introduction into them by an extra copy of their own genes and clone the modified genes. Suppose हम लोग के पास एक ही डीएनए का सीक्वेंस है. ओके, सपोज हियर इज वन एग्जांपल दैट इज सपोज दिस इज एक डीएनए का सीक्वेंस है. ये हम क्या कह सकते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर लिए तो ये उसका क्या है ना, जीनोम का साइज और ये उसका ट्रांसजेनिक फॉर्म्स में वो आ गया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो इतना में तो पूरा होल ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है. ठीक है कि नहीं, तो मुझे क्या करना है, इसका कॉपीज फॉर्मेशन करना है. ठीक है, कॉपीज हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, बाय क्लोनिंग प्रोसेस में. क्लोनिंग प्रोसेस में करेंगे तो इसका मल्टीपल कॉपीज फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं नाम, क्लोनिंग प्रोसेस. द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज द जीएमओ.
In case our also market also variety type or the various types of the different modified crops also found, or different varieties of genetically modified crops are found. So we will be discuss about that particular what is the different kinds of the, what is the variety or the, what is the name of that particular genetically modified organisms or the some crops plants. Okay, so then whenever we talk about the transgenic animals, so ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या क्या आ जाते हैं ना, जो भी फास्ट ट्रांस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीप हम लोग को पता है, ठीक है कि नहीं, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स वैसे ही क्या होगा ना, एनिमल के केस में भी ट्रांस कोई भी जीन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफर करके अनदर जीनम का सेगमेंट में और अनदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो वो एक मॉडिफाइड वर्जन में वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रांसजेनिक एनिमल. So the first transgenic animals were produced in 1982. कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है. These were mice having in them the growth hormone and genes, that is the RGH. Okay, so actual में क्या होता है ना, माइस में हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी में डेवलप हुआ था. From the rat such transgenic mice grow to double the normal size. उसका रिजल्ट क्या आया था ना, देखो पहले जो माइस था उसमें क्या हुआ ना, रैट का जीन आकर के ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ठीक है. तो जो भी माइस ग्रोथ हुआ तो उसको क्या हुआ ना, उसका जो साइज था वो क्या हो गया, माइस का साइज जितना भी हुआ, सपोज दिस इज ए माइस का साइज, जब इसमें रैट का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो जब माइस का जीनोम लेकर के रैट में क्या हुआ ना, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सॉरी रैट का जो भी है तो उसको जीनोम लेकर के माइस में इंसर्ट कर दिया गया, तो उसमें सॉरी इंसर्ट कर दिया, तो इसका जो साइज हुआ, माइस का जो साइज हुआ वो क्या हुआ, नॉर्मल साइज से वो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो गया, ठीक है. देन इज द ट्रांसजेनिक एनिमल हैव बीन प्रोड्यूस एंड दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग. सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, कैसे वो डेवलप हुआ है और क्या उसमें लगा हुआ है, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. तो ट्रांसजेनिक सीप पहले आया था. ट्रांसजेनिक सीप क्या है ना, जब कैसे प्रोड्यूस हुआ था ना, ऐसा ही वही फॉरेन जीन को अप्लाई किया गया था, ठीक है. पहले क्या हुआ ना, ट्रांसजेनिक सीप कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीप, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, ट्रांसजेनिक सीप. और देखो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है ना, जो फर्स्ट जो फीमेल सिप था, ठीक है, फीमेल सिप हैविंग द ह्यूमन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9, ठीक है, जो हम लोग का 13 फैक्टर है, ठीक है कि नहीं, ह्यूमन का केस में. तो जो भी हीमोफिलिक फैक्टर है और जो भी हम लोग का ह्यूमन बॉडी के अंदर में 13 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैक्टर्स पाया जाता है, ठीक है कि नहीं. तो तो इसमें क्या होता है ना, जो फीमेल के सीप जो फीमेल सीप था, तो उसकी केस में क्या होता है ना, ह्यूमन का जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 होता है वो जीन वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है. तो ये इसमें क्या होगा, द सीक्रेट द ह्यूमन क्लोटिंग फैक्टर इन देयर मिल्क, और अब वो क्या कहता है ना, खुद से वो सिक्रेशन कर सकता है क्या ना, ह्यूमन का जो फैक्टर 9 है, क्लोटिंग फैक्टर 9 है, वो कहाँ पे अपना जो मिल्क सिक्रेशन के टाइम में वो सिक्रेशन होता है, ठीक है. द फैक्टर 9 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क एंड एडमिनिस्टर्ड टू द हीमोफिलिक पेशेंट. तो उसमें क्या होता है ना, जनरली यूज़ किया जाता है क्या नाम, जो भी हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उसको दिया जाता है, ठीक है, कैसे ना, जो फैक्टर 9 होता है उसको मिल्क से सेपरेट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको कहाँ पे दिया जाता है ना, हीमोफिलिक पेशेंट को दिया जाता है. द सिप फ्लॉक कैन नाउ प्रोवाइड द एनफ क्लॉटिंग फैक्टर टू सप्लाई ऑल द वर्ल्ड्स हीमोफिलिया. तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, अभी सिप का जो मिल्क है उसको सप्लाई किया जा रहा है, जितना भी का है ना हीमोफिलिक पेशेंट है, ठीक है. Then comes to second point, ये क्या कह रहा है ना, SIP containing the bacterial gene which code for the enzymes needed for the synthesis of the amino acid the cysteine have been produced. So यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये बैक्टीरिया का भी क्या हो रहा है ना, बैक्टीरियल जीन को भी वो कंटेन करता है, कौन, सिप नाम. उसमें क्या होता है ना, एक कोड होता है, जैसे कि सिस्टीन जो एक अमीनो एसिड है, ठीक है कि नहीं, उसके लिए वो क्या होता है ना, एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए उसके जो कोड होता है वो उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है.
दे गिव हायर वूल यील्ड। और इसमें हम लोग को पता है ना कि जो सीप होते हैं उसमें क्या होता है ना, उनका जो ओवर कट होता है, ठीक है कि नहीं, वो क्या होता है ना, ऊल एंड रहता है, ठीक है, ऊल। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, हायर ऊल के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, सिस्टीन। The amino acid cysteine is important component of the protein keratin of the wool। जो ऊल में पाया जाता है क्या ना, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, केराटिन, ठीक है। वो किसके रिस्पॉन्सिबल में होता है ना, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो अमीनो एसिड होता है कौन, सिस्टीन, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो एक यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है शॉर्ट पॉइंट में ही। पहले क्या हो रहा है ना, जो सीप का जो ऊल होता है उसमें क्या होता है ना, सिस्टीन पाया जाता है, ठीक है। सिस्टीन के पास और जो अमीनो एसिड सिस्टीन होता है वो क्या होता है ना, एक एंजाइम सिक्रेशन, वो तो क्योंकि अमीनो एसिड कोड करता है एंजाइम के लिए, है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा ना, हाई वो रिस्पॉन्सिबल होता है हायर ऊल प्रोडक्शन में, ठीक है। जिसमें जो भी सीप होते हैं उसमें अगर ज़्यादा ऊल पाया जा रहा है, इट मीन्स कि उसमें जो सिस्टीन का जो कंपोनेंट है और सिस्टीन का जो सिक्रेशन है वो क्या है ना, हायर होता है। दैट्स वाई वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या ना, ऊल का फॉर्मेशन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। और उसके साथ वो क्या कह रहा है ना, जो ऊल में एक पाया जाता है प्रोटीन क्या है ना, केराटिन, तो वो क्या होता है ना, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, सिस्टीन, ठीक है। important component of the protein keratin of the wool, ठीक है, समझ में आए। then comes to sheep with gene for the growth hormone have also been formed and the yield more mutton। तो इसमें और भी क्या है ना, बहुत सारे जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी इसमें सिक्रेशन होता है जिसके लिए वो उसमें क्या होता है ना, मीट के लिए या फिर मटन के लिए वो ज़्यादा फॉर्मेशन, ज़्यादा मटन उसमें से मिलता है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा क्या ना, अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल। और क्या है ना, और भी है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे कि मटन हो गया, देन समटाइम्स ये हो गया ट्रांसजेनिक सीप के बाद। देन कम्स टू ट्रांसजेनिक गोट। ट्रांसजेनिक गोट में क्या हो रहा है ना, जबकि ह्यूमन जीन्स दैट कोड फॉर द ब्लड क्लॉट डिजॉल्विंग प्रोटीन दैट इज द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, टीपीए, ठीक है। टीपीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली क्या ना, ब्लड का क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने के लिए होता है ना। हार्ट पेशेंट लोग को एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम लोग के ह्यूमन के केस में भी बॉडी में क्या होता है ना, ब्लड ऑलवेज क्या होता है, फ्लोइंग स्टेज में रहता है। जब इनसाइड द बॉडी वो क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है ना, जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ब्लड क्लोट डिजल्विंग प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, वो एक्चुअल में कहाँ पे है नाम, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, गॉट में फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। दिस सिक्रेट दिस प्रोटीन इन द मिल्क, उसका जो मिल्क है उसमें वो सिक्रेशन होता है। दिस प्रोटीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सो जो भी है जो गॉट के मिल्क जो होता है वो कहाँ पे, मतलब कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रीटमेंट के लिए क्या ना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस अगर किसी को होता है तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं ना, गॉट के मिल्क है। So then comes to transgenic cow. Transgenic cow में क्या हो रहा है ना, cows containing the cDNA, complementary DNA coding for the antibacterial human iron binding protein that is the lactoferrin। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो जितना भी मॉडिफाइड आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल्स हो, बेसिकली एनिमल्स के केस में क्या हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं क्या ना, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के बॉडी के अंदर में जो भी फॉर्मेशन हो रहा है फैक्टर सब, वो सारा चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डेवलप हो जा रहा है, ठीक है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्सन में ये मिल रहा है हम लोग को। सो इन केस ऑफ द ट्रांसजेनिक काउ में क्या क्या होता है ना, इसमें क्या है ना, कम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन होता है, और ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए को कैरी करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कुछ एंटीबैक्टीरियल ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, ह्यूमन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, लैक्टोफेरिन, ठीक है। लैक्टोफेरिन, जिसके वो अपने से ही खुद से वो अपने बॉडी में सिक्रेशन कर सकता है या फिर फॉर्मेशन कर सकता है, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। देन ट्रांसजेनिक पिग्स, इसमें क्या बोल रहा है ना, पिग्स हैविंग द बोवाइन ग्रोथ सिंड्रोम, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बीजीएच, ठीक है। तो ये जीन उसके पास है ट्रांसजेनिक पिग के पास, और
द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दोनों जिनको वो क्या कहता है ना अपने सिक्रेशन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इधर उसमें बोवाइन ग्रोथ हार्मोन भी पाया जा रहा है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। सच पिग्स ग्रो ए लिटिल फास्टर and have greatly reduced subcutaneous fat, and they can just provide the linear pork with the lower fat content. So ये एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना, बोथ आर फाउंड, बोथ bovine growth hormone and the human growth hormones are found in case of the transgenic pigs, okay। देन यहाँ पे और एक चीज़ है ट्रांसजेनिक पिग्स में, जैसे कि वो ह्यूमन जीन्स को कैरी करता है, लाइक ह्यूमन एंटीजन इन देयर ऑर्गन्स, एंड द ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज में कुछ क्या करता है ना ह्यूमन जीन्स को भी कैरी करता है। अब सच पिग्स कैन बी ट्रांसप्लांट इनटू द ह्यूमंस विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन। देखो अगर कुछ बॉडी में कुछ इफेक्ट हो जाता है कोई भी इंसान को, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग ट्रांसजेनिक जो पिग होते हैं उसके जो भी ऑर्गन है उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गन्स लाइक हार्ट हुआ, किडनी हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सारा चीज़ उसका जीन क्या है ना ह्यूमन के एंटीजन के साथ वो क्या कहते हैं मैच हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा ना, कोई भी सपोज किसी का भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना होगा या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट हो, तो विदाउट एनी रिजेक्शन, क्योंकि किसी किसी बॉडी में क्या होता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो मैच नहीं होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो रिस्क भी हो जाता है ह्यूमन के केस में, और पर्टिकुलर उस ह्यूमन के केस में। सो यहाँ पे क्या है ना ट्रांसजेनिक पिग में वो सारा चीज़ सिक्रेशन होता है खुद से, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है। सो ट्रांसजेनिक फिश क्या होता है ना, ट्रांसजेनिक फिश ऑफ मेनी स्पीसीज सच एज द कॉमन कार्प, कटफिश, कैटफिश, सैल्मन एंड गोल्ड फिश, दिस हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि ट्रांसजेनिक फिश लाइक कॉमन कार्प, कैटफिश, सैल्मन, गोल्ड फिश, ये सारा चीज़ हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। और इसमें से एक चीज़ पाया जाता है दैट इज ए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये जीन पाया जाता है। they attain a size twice of that shown by the non transgenic fish। और उसका साइज क्या होगा, जो भी नॉर्मल वेराइटी ऑफ फिश हो गया या फिर कोई भी नॉन ट्रांसजेनिक फिश हो गया, उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज क्या होता है ना ट्वाइस होता है, ठीक है, बड़ा होता है। सो ट्रांसजेनिक माउस आवर मोस्ट फेवराइट जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। ट्रांसजेनिक कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता तो माउस पे डायरेक्टली अटैक हो जाता है, ठीक है। सो ट्रांसजेनिक माउस क्या होता है ना, वन स्ट्रेन ऑफ ट्रांसजेनिक माउस कंटेन ए ह्यूमन जीन दैट कॉजेस द ब्रेस्ट कैंसर। सो उसमें क्या होता है ना, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो भी जीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे एक स्ट्रेन पाया जाता है, कहाँ पे, ट्रांसजेनिक माउस पे। This enable the researchers to study the very early development of the cancer। So यहाँ पे और क्या चीज़ है ना, इसमें स्टडी किए थे रिसर्चर्स लोग, और क्या पाए थे ना, कुछ अर्ली डेवलपमेंट कैंसर का भी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। So transgenic mouse carrying a gene for the human growth hormone, that is the HGH, grows to more than twice in size। जब ट्रांसजेनिक माउस अगर हम लोग जब ह्यूमन के जीन कैरी करता है तो क्या उसका साइज क्या होता है ना, डबल हो जाता है। A plasmid carrying HGH or human growth hormone gene is injected into the egg that develops into the super mouse। जब कोई भी प्लाज्मिड को ला करके हम लोग कहाँ पे ना माउस के अंदर में हम लोग उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जो कैरी करता है क्या ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो वो जिनको कैरी करता है तो वो क्या बन जाता है ना, सुपर माउस बन जाता है, ठीक है। or the human growth hormone gene produces the human growth hormone in the cells of the mouse that therefore grows on the unusual size। so ये इतना बड़ा हो जाता है तो उसका मतलब कि उसका जो साइज है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, ठीक है। तो ये था ट्रांसजेनिक माउस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। The mouse on the right has a human growth hormone genes and the grows twice the size of the normal legitimate on the left। सो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल माउस का साइज क्या है ना, ये है। अब जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब इंजेक्ट किया गया माउस के अंदर में, उसका साइज देख रहे हो कितना डबल हो गया है, ठीक है। तो ये था क्या है ना ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक माउस के बारे में।
तो उसके बाद क्या बोल रहा है ना, मोलिकुलर फार्मिंग। मोलिकुलर फार्मिंग क्या है? The method of manufacturing the drug in the transgenic animals is called the molecular farming or the molecular farming. So one thing that is the whenever we develop some drugs, okay, so for transgenic animals या फिर transgenic variety कोई भी organism हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी जब हम लोग प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं तो कोई भी उसमें क्या होगा ना, ग्रोथ हार्मोन हम लोग दे देते हैं कि जल्दी उसमें बड़ा हो जाए, उसमें फ्रूटिंग आने के लिए जल्दी फ्रूटिंग आने के लिए हम लोग क्या कहते हैं ना, हार्मोन दे। ये सारी चीज़ क्या है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। और इसको ही क्या बोला जाता है ना, मोलिकुलर फार्मिंग और मोलिकुलर फार्मिंग, ठीक है। उसका जो फार्मिंग, इसका स्पेलिंग जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और PHARMING ये भी लिख सकते हो, फार्मिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मेथड हुआ क्या ना, मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्रग का, तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसका हमने क्या बोलते हैं ना, मोलिकुलर फार्मिंग और द मोलिकुलर फार्मिंग। So the transgenic animals can revolutionize the pharmaceutical industry by the providing the large quantities of the valuable drugs. तो ये सारा चीज़ क्या होगा ना, बहुत सारा ड्रग्स का वैल्यूएबल करता है, ठीक है कि नहीं। जितना भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं किसके लिए ना, जो भी ट्रांसजेनिक वैराइटीज को दिया जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल को जो भी दिया जाता है ड्रग, ठीक है। सो द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी परमिट्स द रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ट्रेड्स। और इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जो न्यू न्यू वेराइटीज़ उसमें आने के लिए, ठीक है कि नहीं। कोई भी ओल्ड वेराइटीज़ हो गया तो उसमें हम लोग कुछ न्यू ट्रेड ऐसा इंसर्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो मॉडिफाइड वर्जन में डेवलप हो सके, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इसमें परमिशन दिया जाता है या फिर परमिट किया जाता है फॉर रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ट्रेड्स। कोई भी जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या करता है ना, उसमें जल्दी कैसे वो न्यूली जो हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया वो कैसे बहुत रैपिडली और फास्टली वो कैसे वो डेवलप कर सके, इसीलिए हम लोग ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। So then comes to the transgenic plants. So what do I mean by transgenic plants? We have already seen about the transgenic organism, transgenic animals, and the different kinds of the transgenic varieties of the animals. Okay, so here we comes about the transgenic plants. So first things, whenever we see about the plants and then the animals, so transgenic process is very easy, okay, to develop a new variety of the crops or a new variety of the plant species. A single cells in the most plant species can regenerate a whole plants. Also we called as the totipotency. Also totipotency it means कि हम कोई भी सेल ले लेते हैं, हम स्टेम सेल हो कोई भी सेल ले लेते हैं हम, जिसमें उसमें कैपेबिलिटी होता है कि वो कैसे ना पूरा होल ऑर्गेनिज्म लाइक उसमें डेवलप कर सके, होल प्लांट को वो रीजनरेट कर पाए, ठीक है कि नहीं। तो उसमें कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंशियल। So thus a single genetically engineered cell can produce a new plant with the new traits, okay। So कोई भी सिंगल जेनेटिकली इंजीनियर सेल को अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो उसमें से न्यू ट्रेट के साथ अगर न्यू प्लांट वो डेवलप कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैसे हम लोग ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग कैसे न्यू वैरायटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही सारा चीज़ होता है, ठीक है। और कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम लोग करते हैं, देखो पहले पहले तो क्या होता है ना, डिजीज रेजिस्टिविटी कैपेसिटी उसमें होगा, है कि नहीं। जो भी न्यू वैरायटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं प्लांट का, तो जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, ये सर से पेस्ट कंट्रोल हो सकता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ये सारा चीज़ सब वो रेजिस्टिविटी कैपेसिटी उसमें क्या होगा ना वो डेवलप कर सकता है। और सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, टॉलरेंस कैपेसिटी, जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन में सॉल्ट टॉलरेंस हुआ, ड्रॉट टॉलरेंस हुआ, सैलिनिटी ये सारा चीज़, ठीक है, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी, हैवी मेटल्स ये सारा चीज़ को क्या कर सकते हैं वो टॉलरेट कर पाएगा। Then comes to third, that is can produce pharmaceutically important compounds such as the human insulin, interferon, hormones, blood coatings। इसके लिए भी क्या होता है ना, जो ट्रांसजेनिक वैरायटी प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर डेवलप किया जाता है।
Then fourth one is the can synthesize the antibodies and the vaccines and their fruits when eaten may give the immunity against the disease in case of the children. Some in case in nowadays it's very much familiar with the immunity booster also. So maximum people use various plants as immunity boosters. So they can eat their fruits, they can eat their leaves, stem person, all those things. So it can synthesize some antibodies and some vaccines and their fruits whenever we eat in that particular foods, and it may give some immunity against some disease. Okay, so it can fix the atmospheric nitrogen and they exclude the need for the using the costly fertilizer. So whenever we bought some fertilizers from any shop, yeah, फिर any market or the marketplaces, there is it may be some too much cost. Whenever we fix some transgenic plants, it can fix the atmospheric nitrogen and exclude the need for the using the cost fertilizers. Okay, so it may bear the flowers with the new colors and lagan life for the better ornamental prospects. Whenever we see in case of the parks some and some roadside area also, there is the found we can variety of the plants, okay, variety of the flowers, because these are genetically modified. Okay, and and there is coloration of the flowers also modified, because in case of the one plants that can carry the different flowers, different colors of the flowers also. Okay, and it gives us also pleasant also, and it gives some beautiful beautiful scenic places type. Okay, so ornamental prospects we use for better ornamental prospects. Then comes to last, that is the may yield is slow ripening fruits for the longer shelf lives. Whenever we see about some fruits like apple, then grapes, all those things, basically in case of the apples, so whenever we store these apples in our fridge or in our home, it can moves from 7 to 8 days also without any damage of that particular fruits. Okay, so whenever we uh, so these are used mainly for the slow ripening fruits also. Okay, समझ में आया. देन कम्स टू ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि ट्रांसजेनिक वेराइटीज होते हैं. लाइक वाइज दे आर इंट्रोड्यूस टू mainly from the bacteria, yeast. Okay, so bacterial and the yeast cells have been engineered with the new cells that code for the useful of the human proteins. Most of the bacterial cases में क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं क्या ना ह्यूमन के केस में, जैसे कि इंसुलिन कहाँ पे ना, ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज एंड द क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट मेनली यूज इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द हीमोफीलिया, and some growth hormones like wise the treatment of the pituitary dwarfism, some tissue plasminogen activator, that is the TPA, mainly used for the dissolving blood clots in case of the heart attack patients, and interferon, interleukin, tumor necrosis factors, which are used in case of the treatment of certain kinds of the cancer. So natural sources of these proteins yield only the teeny amount, making them making them very costly. सो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये सारा चीज़ ऑब्टेन किया जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी टीनी अमाउंट में, बट इसका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है. सो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड द ईस्ट प्रोड्यूस दिस प्रोटीन्स एट द लार्ज क्वांटिटी. हम लोग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ईस्ट के थ्रू में हम लोग लार्ज क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं ना, इसको फॉर्मेशन या फिर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो दैट द रिक्वायरमेंट जो हो रहा है हम लोग का, तो उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. सम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया विथ एनवायरमेंटल यूज. कुछ बैक्टीरिया होते हैं ट्रांसजेनिक जो कि हम लोग को नॉर्मल यूज़ किया जाता है एनवायरनमेंट में. लाइक वाइज बैक्टीरियल स्ट्रेन हैविंग इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल यूजेस. हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरियल का स्ट्रेन करते हैं हम लोग, देखते हैं ना ग्राम स्ट्रेन करते हैं ना लैब में, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरियल का स्ट्रेनिंग. वैसे ही क्या होता है ना एनवायरनमेंट में भी किया जाता है, और उसका जो यूजेस है
उसी के लिए एनवायरमेंटल के लिए यूज के लिए किया जाता है। क्या ना एक्सेलरेट द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑयल स्पील, एंड ऑयल का जो स्पीलिंग होता है उसके लिए क्या होता है ना, उसको डिग्रेड करने के लिए भी वो स्ट्रेन यूज होता है। और क्या ना डिस्ट्रॉय द डेंजरस केमिकल्स लाइक द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द टॉक्सिक वेस्ट। सो कुछ केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी उसको यूज़ किया जाता है, हेल्प होता है। कुछ लाइक वाइज सम टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। or some transgenic E. coli, Escherichia coli, like the engineered Escherichia coli produce the bovine growth hormones. So bovine growth hormones, that is the BGH, we have already talked about the bovine growth hormone in case of the transgenic pigs also. So these hormones when injected into the cows and raise milk production as well as the beef output. So these are mainly used for the milk production और beef प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और इंजीनियर ई कोलाई प्रोड्यूस द एंजाइम सेलुलेज and which hydrolyzes the cellulose and enables the animals to utilize their entire feed। तो उसमें क्या करता है ना, जो ई कोलाई होता है इंजीनियर और जेनेटिकली इंजीनियर जो भी ई कोलाई होता है वो क्या करता है ना, सेलुलेज एंजाइम को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और सेलुलेज एंजाइम क्या करता है ना, वो हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज मीन्स ब्रेक डाउन कर देता है किसको ना, सेलुलेज को वो सेलुलोज में कन्वर्ट कर देता है। और वो क्या हो जाता है, एनिमल जो भी है उसको फीड करने में यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। देन जीन का टारगेटिंग, जीन टारगेटिंग क्या होता है, कोई भी जीन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं, टारगेट डीएनए सीक्वेंस कर सकते हैं। तो जीन टारगेटिंग क्या होता है ना, ए वेरिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इज जीन टारगेटिंग and in which a multicellular organism has a particular gene inactivated in the each of its cell। so ये क्या होता है ना, जीन टारगेटिंग होता है क्या ना, पर्टिकुलर उस जगह में हम लोग जा करके उसको क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं, तो ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, जीन टारगेटिंग होता है। by observing this organism the researcher can pinpoint of the roles of the particular genes। तो ये सारा चीज़ क्या था ना, तुम्हारा क्या ना, जीन टारगेटिंग था और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमओ। सो हियर इज वन थिंग, genetically modified crops are plants whose DNA has been modified to introduce the useful the traits such as high yield, pest resistance, nutrition and different types of the flavors। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सारा चीज़ क्या था ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एनिमल्स एंड some organisms, okay। so I think all of you getting some knowledge regarding the what is the transgenic organisms। so in the next class we are particularly going to discuss for the transgenic plants or genetically modified crops or the transgenic plants, okay। thank you।